Okay. So in the last session, we have discussed the important library of Python called NumPy library, which is used to handle the arrays, one-dimensional arrays, two-dimensionals, and even multi-dimensional array. And this is very much important library as far as the handling of arrays are concerned, because our data will be stored in the form of arrays. Now, the next important library is called Pandas library, which is again important library for machine learning, which is used for handling the databases or to pre-process the database. Now, as far as the machine learning is concerned, our model will be trained on some data set. So we'll be having some data, and that data can be stored in the form of CSV file, sometimes in the form of Excel sheet, or even in the form of some database like SQLite database we have seen. So our data mostly come in the form of CSV file, or sometimes in Excel sheet, or even in some sort of database file. So in order to clean that file, in order to process that file, or in order to understand the data, we need some library, and that library is nothing but Pandas library, which will be used to pre-process dataset. Now, what topics we are going to cover in today's session? Number one, we are going to discuss how we can install the Pandas library. Then we'll discuss the what is Pandas series, Pandas data frame. Also, we'll talk about reading CSV files. We'll have a CSV file. We'll read that CSV file. We'll understand that CSV file. Then cleaning data. Now, that's the important topic that we're going to discuss today. So, as far as cleaning is concerned, we'll deal with some wrong format data, wrong data, duplicate entries inside the database, or some empty cells. We will deal with such datas, and we'll try to clean that data. After that, we'll discuss how the correlation can be established, or how to calculate the correlation in pandas data frame or whatever data set we are having. And also we'll talk about how we can plot the data. So different library we are going to use for plotting the data set, or to visualize our data set in graphical format. But in today's session, we are going to talk about the all about data sets, how to handle these data sets using Pandas library. So this is very interesting and much powerful library, which will deal with the CSV file. Of course, there are some modules and packages in Python which can handle the CSV file. Even the Python installation itself comes with a CSV model, and that model can handle the CSV files. But handling CSV files using Pandas is much easier. Even we have seen the file handling in Python, so opening, reading, writing from the file. But still, the Pandas library provides much better interface than traditional file handling, and even the CSV module, which the Python by default provides. So right now what we'll do, we are in the project folder, so we'll create a new Python file called pandas tutorial. And inside that, we are going to discuss everything about the pandas library. So number one thing that we are going to do is to install the pandas library. In order to install that pandas library, the basic syntax is pip install pandas. So that's the instruction that will execute in the terminal. So this will download and install pandas library from the internet. And if you are already having the pandas library, so in that case, it will take that library, or it will show the message called requirement already satisfied. So in my case, the requirement is already satisfied. The pandas library is already installed in my computer. But if it is not, you can definitely download and install from the internet using pip install pandas instruction. So previously we have used pip install numpy, and this time we can use pip install pandas library, and that will install the pandas library in your Python environment, and hereafter you will be able to operate using pandas library. Now, as usual, we are here to import the library. So import pandas, that's thing. Okay, so that is fine. But pandas library is popularly imported as PD. Okay, so import pandas as PD. So just like your NumPy library, which is imported as import NumPy as NP. So the pandas library is imported as PD. Okay, so import pandas as PD. So meaning is very clear.
Hereafter, the pandas library will be referred by name PD. Okay, so hereafter we'll not use pandas.series or pandas.dataframe or whatever functions are available with pandas library. We'll not use pandas dot. Instead, we'll use PD dot series and PD dot whatever we are going to do. Now, number one thing that we are going to understand is the pandas series. Now, two important concepts are there: pandas data frame and pandas series. So, as far as the series is concerned, it's a single dimensional thing. It is having only one dimension. But when I say the data frame, it is having two dimensions, the rows as well as the columns. So first of all, we'll see about pandas series, which is a one dimensional thing. And now we'll understand how the data is represented by using series and how it is represented by using the normal traditional printing. So first of all, if I am having a data, let's say I am having data A equals to some list. Let's say I am having 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is my data or the temperature values we can say. Let's say I have 25, comma 30, 45, and let's say 20. So these are my temperature values. So I want to print it out with this temperature values. And if I print simply without the pandas data frame, print A, let's see what kind of result we get. So, okay, I think it's not printing. Let's try one more time. So this is how I'm getting the result: 25, 30, 45, and 20. Okay, these are the values which are printed like this. But if it is converted to Panda series, then how it will be printed? Let's try to understand. So here we will create, let's say, series S equals to PD dot series. And then we have to pass this argument A. Now we'll see the clear-cut difference in the result. So here, okay, I haven't printed, that's the problem. Print S should be there so that I'll get the result. Now here you can see, now I am getting much better visualization of my result. 0, 1, 2, 3 and 25, 30, 45 and 20. So the previously it was just a list, it was printed in the square bracket, but right now I am getting some index 0, 1, 2, 3 and corresponding to those index I am getting some result. Okay, so not only that, now the accessing is very straightforward. So if we print instead of s, if you try s of 0, it will print the very first thing, so that is 25. Similarly, you can operate the range of indices as well, so 0 to 4 as usual. The third, it will print up to 0 to third index. So again we are getting these things. So right now it's very much clear that we can play with the indices and you can provide some different indexing terms. But when we use pandas series, it will print the result along with the index, and corresponding to that index whatever value is there, that will be printed by the pandas series or pd.series function. But simply if I print that list or whatever data I'm having, one dimensional data I'm having in the form of list, then it will be just a square brackets, and inside that square bracket everything will be printed. So that's the visualization issue. So I will get better visualization or better representation of my data if I go with pandas series. Now this is one thing, but more interestingly, this is not just a thing, but you can provide custom indexing. That's the interesting thing. Now I know these are the temperature values which corresponds to day 1, day 2, day 3 and day 4. So instead of having 0, 1, 2, 3, I can specify here day 1, day 2, like this, day 1 comma day 2 comma day 3, and of course day 4, this kind of thing. Now in this case, if I try to print S, in this particular case, if I go with printing the S, then I'll get the better result. So here I'll get this one: day 1 25, day 2 30, and day 3 45, and day 4 20.
And interestingly, you can also use this indexing funda. So day one you want, for example, then definitely you can get that. So this is 25 in this particular case, and even the range can be provided. Say day 4, you can see here, and along with that range the data. Okay, so key error. Okay, the key error is day 1 should be like this one, एंड ये इस तरह से होना चाहिए. ओके, तो मैंने पूरे इसको ही इंडेक्स दिया था. जो कोलन वाला पार्ट है दैट वाज आल्सो इनसाइड द स्ट्रिंग, सो दैट वाज द प्रॉब्लम. दैट्स हाउ आई गेट दैट एरर कि डे 1 कोलन डे 4 इस तरह से कोई वहाँ पे की है नहीं. यू शुड गिव डे 1 इन स्ट्रिंग फॉर्मेट कोलन डे 4 इन, बिकॉज डे 1 स्ट्रिंग फॉर्मेट में की है, इससे यहाँ तक जाना है. सो दैट्स हाउ. Now it's great. Okay, so now we are getting day 1, day 2, day 3, and day 4, such kind of result. So interestingly, you can modify the index of your data as well. So that's the much better advantage which is provided by our pandas data frame. Okay, so pandas data frame can provide you such kind of flexibility and such kind of advantage. Sorry, it's not the data frame, it's series actually. And series is for the one dimensional data. If you're having the one dimensional data, then we can go with the series. Now this I have done if I was having the input as a list, but consider you have got dictionary as input. So you directly having the dictionary instead of list, you are having dictionary. So here day 1, and its corresponding temperature is 25, and again you have day 2, and its corresponding temperature is 30, and again you have day 3, and its corresponding temperature is 45, and again you have day 4, and its corresponding temperature is 20. So this is how you are having the okay, so it should be curly bracket again because it's a dictionary. So if you are having data set in the form of dictionary, so this could be a data set. Consider this as a data set because let's say I'm doing something. I want to predict temperature for tomorrow. Now it's very simple, practical, and will be a simple machine learning stuff. So I have a temperature values over the period, or let's say for the last 2 months. So I'm having day 1 to day 60 for last 2 months. That means from day 1 to day 60, I'm having the temperature values for a particular city, and I want to predict the temperature for that city next day. What will be the next day temperature? That means for the 61st day. So in that case, I will be having data, let's say in the form of dictionary or in the form of list. Then I can apply machine learning step on it. So first of all, before going with the machine learning or before actually apply machine learning on it, we'll convert into a series form because it's a one dimensional thing. If it is one dimensional thing, we'll go with the series form, and after that we will apply the machine learning algorithms on it by extracting the dependent and independent variables. So we'll discuss that thing later on while discussing the machine learning stuff. But right now, this is data set. The first step towards machine learning is the data set. You should have a data set, and once you are having the data set, we'll analyze that data, we'll process that data, pre-process that data. Okay, pre-processing, some sort of pre-processing we will do. Then feature extraction and other stuff is required. So in that case, we need to take down some columns of your data set as a features and some columns as output or target variable, or the dependent variable and independent variable. That's what we call it as technically. But that will be the second step. That can also be done using the pandas library because it will provide better slicing of your data set. So that's all stuff we are going to do, and we are going to understand the CSV file also in today's session. So we'll also load the CSV file in pandas library. So now once you have such kind of thing as a data, and if you can convert that into a series, now you can simply print s. If you're having dictionary itself, then in that case you will get the better results. Okay, directly you will get day 1, day 2, day 3, day 4, and this kind of result. But if you print it as a dictionary only, so if you print like a, we will understand what's the difference. Okay, see here, this is the difference. Now this is the dictionary, this is how we are getting the representation, and by printing the series we are getting much better representation of our data.
and of course much better slicing and indexing options using the pandas library, though it can be done using dictionary itself. But uh, in order to handle the large data sets and the large data, the pandas could be the better option. Okay, so now this is all about the series, panda series. It is one dimensional thing. So whatever data you are having, it's one dimensional data, having only one column. So we can go with this one. Pandas data frame is two-dimensional thing. Okay, so it is generally called as two-dimensional thing. Now we'll try to create that thing, the two-dimensional thing. So instead of having this term, again we'll load this library, and our data set this time will be two-dimensional thing. So here I create a variable called data set equals to, I'll create a dictionary here again, which will be two-dimensional. Let's say same thing, day, and for this day I'll have a list 1, 2, 3, 4, and 5. So 5 days data I'm having, and its corresponding temperature I'll be having temperature. And this time again I'm having the list, let's say 25 degrees centigrade, then 32, then 45, then let's say 28, and let's say the fifth value is 30 degrees centigrade. So this is how I'm having the data set. Okay. Now if I print this data set as a dictionary, let's see what happens. I print this as a dictionary. This is the representation you will get: day and their corresponding temperature, like this, day and like this. So not a good representation. We can't say, it's not that much readable, not user friendly as well. So if I convert this to a pandas data frame, which is very popular, because panda series we hardly going to use, we will be using pandas data frame always. So we'll create a variable called data frame and pd dot data frame function. Previously we have used series function, this time data frame. From what you have to create? I have to create from the data set. And then if I print df this data frame, I'll get much better representation. Now here you can see the representation is much better. This is the index and this is day 1, 2, 3, 4, 5 and its corresponding thing as a table. So this is tabular information. Now it's very much easy to read. I can read it very easily, understandable, and again it's much easy to read. So this is how the pandas data frame provides advantage over normal dictionary or the list. While as far as the data representation is concerned, once you will be able to represent data in proper format, you will be able to understand your data correctly or in a suitable way. But if your data is not represented in proper format, then it's very difficult to understand and analyze that particular data. So data representation is one of the important things. So pandas library provides better way to represent your data. Interestingly, you can also customize this index value. For this, it's not really required to modify the index, but definitely if you want, you can modify the index. Now, consider my day is input and temperature is output. Okay, for example, this day column is input column and temperature is the output column. So if I provide day as an input, then it should predict the temperature value. Then this separation is very straightforward. If you simply print here, instead of df, if you print df of day, then you will get all first column, that day column. So I'll get this 1, 2, 3, 4, 5, and of course this index. If you print df temperature, then you will get the temperature values only, so only temperature value. So this is how the columns can be separated. I will be able to separate my columns. So that's the important, or this actually prints a data frame only, but with only one column. So if you want 2 3 columns, then you can go with that also. But it's very interesting that I can separate some columns, and once I will be able to separate some columns, so one column I will be used to train my model, and one column I will use for getting the outcomes. So for machine learning, some columns will be input and some columns will be output. So input will be there and some output columns will be there. So the separation is very straightforward by using this thing. So if I want to
do this. Interestingly, you can also provide the custom indexing. Now, right now the indexing is 0, 1, 2, 3, 4. But if you want to provide any separate index, then definitely here you say the index options none, but you can provide your custom index. And then in this case, let's say I want to provide index like day 1, comma, day 2, day 3, and so on, day 4, and of course the last one could be day 5, this thing. So this will also be your custom index. Okay, now with this index it will operate. Now it's day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, and again these values are like this one. So this is how the indexing can be applied, the custom indexing can be followed, and you can use it. Now, next important thing is that you can actually access the particular elements from this, or indexing can be provided to that. Let's keep it as it is, and we can locate some rows. For example, I want to print the value at index 0. So in order to do that, you can use df dot location function, and here you provide the location 0. So location, here the index is provided, so this is the index 0. So in this case, at index 0, so first of all, let me print df so that we will understand what is df, the data frame. Now this is our actual data frame which is printed, and I have printed df dot location 0. So in that case, day equal to 1, temperature equal to 25 for that. So this is the outcome of line number 9, print df dot location 0. So this outcome is the outcome for this line. So this is how I'll be getting the outcome for that particular thing. So now next is I can also provide here range like 0 to 4, and in this case it will print like this. So again it will slice that. So this is one and same thing that what we have done in the last case, in case of series. So we have separated our columns likewise. Even not only that, you can either provide like this, or for example you want to use some columns, let's say, or some rows 0 and 1 you want to use. So in this particular case, you have to use double square bracket here. So this square bracket is very important, that indicating that these two rows will be considered. So now in this case it will consider these two rows, right? So 0 and 1. So if you provide multiple, then it will take some multiple rows over there. So this is how the rows can be provided, or the rows can be separated for our data frame. So data frame can be constructed from any data set. So either you can have a dictionary, or you are not having the dictionary but you are having some data, so you can create a data frame from that. And you can also use the CSV files here also. So now in future we are going to talk about the CSV files in detail. So the next is, instead of doing this thing, we will talk about the CSV file. Now in order to handle the CSV file, I am having two CSV files with me. One is data.csv and another one is dirty data.csv. So this is data.csv file. So you can see the contents of this file, having number of rows, and again I'm having this dirty data.csv file. So this is again the CSV file. So I think this is not providing the better visualization of CSV file. So what I'll do, I'll open that CSV file in this one. Okay, here I'll open that CSV file. So first of all, data.csv file. So first of all, let's understand this CSV file here, and after that we'll discuss what is there inside the CSV file. So this is my CSV file, and inside this CSV file I'm having different things. There are four columns. First column is duration column, second column is pulse column, then max pulse and calories. Okay, some data set is there. It can be calculation of calories using duration, pulse and max pulse, or whatever. No, this is, we're not going into the details of the application what exactly it is doing. But if you observe this data set,
carefully, if you observe this particular data set, you will find somewhere the entries are not there. So see here at line number 19, calories is missing. Okay, so there is no calories in line number 19, so it's missing. Similarly at 29, again the calories are missing. So many times we can come across such data sets where the data is missing or data is in the wrong format. In this particular data set also, we are having so many entries. Roughly we can say we are having here 170 entries. Around 170 entries we are having, but at least 169 or 168 entries we're having. So we need to analyze this entire data in Pandas library so we can identify where the data is empty, how to deal with that empty data, how to remove such columns. So that's thing we are going to handle. Okay, so this is all about the data which we are having, and now we are supposed to load this data in our Pandas environment, and let's handle that in Pandas way. Okay, so in order to do that, let I will clear the terminal so that I'll get the fresh result. Now, in order to read the CSV file, Pandas library provides you a straightforward function called read CSV. In previous case, while file handling, we were using open function, and then it's more we were talking about so all those things. But let's say data frame, it will create direct data frame from our CSV file. So data frame equals to pd dot read CSV function, and here you have to provide the path of your file. So this is data dot CSV file. So this is my file, and it will create a data. Now, interesting thing is that if I print df, it will not print entire content of my file. So previously I have used print df, and it has printed the entire content. Now why it has printed entire content? Because I was having a limited data, I was having only 5 columns. So that's how, or 5 rows basically. So that's how it printed all the things. But if I print df, it will print only first 5 and last 5 columns. Okay. Oh, sorry, rows, first 5 rows and the last 5 rows. So if you run this one, you will see here the result is quite interesting. Here we are getting only this first 5, there's 0 to 4, and the last 5. And total 169 rows and 4 columns are there. That's the basic information we are getting over here. So we are getting actually first 5 and last 5 columns, and in between that we are getting dot dot if I print df. Now I'll clear the terminal, and if I want to print the entire data, what should I do? So if you have to print your entire data, then in that case you should use df dot to underscore string function. So if you use this function to print the data, it will print your entire file. So if you run this time, it will print your entire file. So now it has printed everything along with your index value. So you can see over here, it has printed your index values, duration, pulse, max pulse, calories, everything it has printed. And sometimes you are getting not a number. Not a number means here the data is empty. So here we are getting empty data, or there is data is missing in your data file or in data set. So again we'll clear this one. So in order to print entire data, df2 string function you will use. Also, for example, I don't want to print everything, and again I don't want to print the first 5 and last 5 rows. I just want a sample of my data. I don't want entire thing. I just want a sample. मुझे सिर्फ एक सैंपल चाहिए कि 4-5 रो अगर मुझे मिल जाए तो दैट विल बी अ सैंपल. तो उसके लिए भी यहाँ पे एक फंक्शन है called df.head. So using head function, you will be able to print first 5 rows of your CSV file. Now these are first 5. Similarly, मुझे first 5 ही नहीं चाहिए, मुझे first 10 चाहिए. So you pass this argument first 10, then you run this, so you'll get the first 10. अगर first 25 चाहिए तो you can get with that. Now I want
लास्ट, मुझे लास्ट के चाहिए, फर्स्ट के नहीं चाहिए, तो देयर इज टेल फंक्शन। हेड के फर्स्ट आएंगे, लास्ट करना है तो टेल फंक्शन, सो आई विल गेट दिस टेल। अगेन यहाँ पे अगर आप आर्गुमेंट पास करके मुझे 10 चाहिए, तो इट विल प्रिंट 10 नंबर ऑफ bottom elements or bottom rows like this. So this is how the sample can be extracted from your pandas data frame. तो जो भी sample data चाहिए आपको, first 5 चाहिए या first 10 चाहिए, वो extract करो, because in data set you will be having entries around, let's say, thousands of entries, 10,000 entries. तो आप क्या 10,000 यहाँ पे प्रिंट करके एक 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 देखोगे नहीं, यू विल जस्ट चेक फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5। चलो मुझे फर्स्ट 5 चाहिए, तो उसमें एक सैंपल मुझे मिलेगा, एंड विद दैट सैंपल आई कैन अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या क्या है। ओके, सो इन ऑर्डर टू डू दैट द head function and the tail function can be used. Now next important function is df.info. Now this is very important, it will give you info about your dataset कि dataset क्या है और किस तरह से इसके अंदर क्या क्या है। So if you run this, you will get this interesting information. So you are getting, this is pandas data frame, and it is having the index range from 0 to 168, and around 169 entries इसके अंदर है। टोटल 4 कॉलम्स इसके अंदर है, और जो 4 कॉलम यहाँ पे है, पहला जो कॉलम है दैट इज योर ड्यूरेशन कॉलम। और अगर आप ड्यूरेशन कॉलम की बात करो, तो इसके अंदर 169 एंट्रीज है जो कि नॉट नल है, और इसका डेटा टाइप इंट 64 बाइट का इंटीजर नंबर इसके अंदर है। सिमिलरली ये सारे कॉलम्स नॉट नल है, लेकिन कैलोरीज की अगर आप बात करोगे तो आउट ऑफ 169, 5 ऐसे रोज उसके अंदर है जो कि एम्प्टी है। तो 164 ही नॉट नल है, नॉन नल है, बाकी के जो है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे जिस तरह से डेटा टाइप दिख रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट का एक कॉलम है कैलोरीज और बाकी के 3 कॉलम इंटीजर टाइप है, तो वो यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रहा है, और टोटल साइज जो है वो 5.4 किलोबाइट्स आपके डेटा की है। सो यहाँ पे अपने डेटा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक ही फंक्शन में यहाँ पे मिल जाती है, डेटा df.info कि इसके अंदर एग्जैक्टली है क्या। ड्यूरेशन आपका इंटीजर टाइप है, पल्स आपका इंटीजर है, मैक्स पल्स भी इंटीजर है, लेकिन कैलोरीज जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। सो ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलेगा कि पूरे डेटा सेट के अंदर कितने एंट्रीज एम्प्टी है, कहाँ पे मिसिंग है डेटा। ओके, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा ना कि आई एम हैविंग 10,000, अगर मेरे पास 10-15 रिकॉर्ड्स है, तो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे डेटा खराब है या फिर कहाँ पे डेटा में प्रॉब्लम है। लेकिन इफ आई एम हैविंग 10,000 एंट्रीज, इवन 1,000 एंट्रीज, एक एक रो में चेक नहीं कर सकता। सो इन दैट केस df.info फंक्शन विल हेल्प यू टू फाइंड आउट the entire info about your data। सो किस डेटा टाइप क्या है, अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में कुछ डेटा है, एसटीआर फॉर्मेट में, तो उस डेटा को हमें एनकोड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सम नंबर्स। वाई नंबर्स? बिकॉज सी, मशीन लर्निंग मतलब क्या है कि कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई होगा, मतलब जो भी आपके कॉलम्स है, लेट्स से ड्यूरेशन पल्स एंड मैक्स पल्स, इनका इनके अंदर जो भी डेटा है इनको प्रोसेस करके हम कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक इक्वेशन बनाएंगे, 2 इंटू ड्यूरेशन माइनस 3 इंटू पल्स प्लस 4 इंटू मैक्स पल्स इक्वल टू कैलोरीज। लेट से इस तरह से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, तो इस तरह से इक्वेशन हम फिट करेंगे उसके ऊपर। तो ये इक्वेशन जो है ना वो इंटीजर नंबर्स या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे काम करेगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। इट विल नॉट वर्क ऑन नॉन न्यूमेरिक डेटा। तो अगर आपके डेटा सेट में ऐसा कुछ कॉलम है कि उसमें सिटी करके एक कॉलम है, वहां पे पुणे, मुंबई, दिल्ली इस तरह से इंफॉर्मेशन है, और उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर का वैल्यू है। लेट्स से मंथ करके एक कॉलम है, उसके अंदर 1 to 12 नंबर्स होंगे, और सिटी करके एक है कॉलम, उसके अंदर पुणे, मुंबई इस तरह से लिखा हुआ है, एंड देन आउटपुट कॉलम इज टेम्परेचर। तो आपको प्रिडिक्ट करना है टेम्परेचर, अगर आपको सिटी एंड मंथ इनपुट किया, मान के चलो 1 मंथ मतलब जनवरी, एंड अगर पुणे दिया तो उसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, फर्स्ट मंथ एंड मुंबई दिया तो टेम्परेचर कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे मुंबई पुणे ये जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर हम मशीन लर्निंग नहीं कर सकते, या फिर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा टाइप है वो आइडेंटिफाई करना। तो अगर इस तरह से कुछ कॉलम्स होंगे जैसे कि मुंबई पुणे, तो लेट्स से पुणे इक्वल टू 0, मुंबई इक्वल टू 1,
Nagpur equal to 2, ऐसे Solapur equal to 4, like this we can encode that in some number numeric form. तो एक बार वो numbers में आ गया ना, तो फिर हम उसके ऊपर एक मैथमेटिकल इक्वेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स के ऊपर मैथमेटिक्स काम करेगा, नॉन न्यूमेरिक डेटा पे मैथमेटिक्स काम नहीं करेगा, जो कि इंटीजर है. So now we have understood that in our data there are several problems. कहाँ पे डेटा मिसिंग भी है, लेकिन जो मिसिंग डेटा है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम CSV फाइल को pandas लाइब्रेरी के अंदर लोड कर सकते हैं. देन उसके कुछ हेड टेल एंड उसका इन्फो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ ये जो जो डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, जो पांडास लाइब्रेरी से हम मोस्टली करेंगे और आगे चल के भी ये लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आई एम हैविंग अनदर स्मॉल डेटा सेट जिसके अंदर मेरे पास ओनली 31 या 30 एंट्रीज है. सो इन दिस आई एम हैविंग वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एंट्रीज. सो अराउंड आई एम हैविंग only 30 entries in this particular thing. सो यहाँ पे सेवरल प्रॉब्लम्स है, इस वाले डेटा सेट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है और स्टेप बाय स्टेप हम आइडेंटिफाई करेंगे. सो इफ आई कंसिडर दिस वन और दिस 20th थिंग, यहाँ पे एम टी सेल है, आई एम गेटिंग दिस एज एम टी. देन यहाँ पे 24 को भी मेरा डेट वाला कॉलम एम टी है. दिस 20 को ये कैलोरीज वाला एम टी है. एंड अराउंड अगर मैं बात करूँ इस कॉलम की, 30th कॉलम, सो सॉरी रो, दिस इज अगेन एम्प्टी, तो यहाँ पे भी एम्प्टी है. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कुछ कुछ सेल्स एम्प्टी है. अपने जो डेटा सेट है यहाँ पे दो चार सेल्स ऐसी है कि जो एम्प्टी है, दीज आर एम्प्टी, देयर इज एब्सोल्युटली नो डेटा प्रेजेंट इनसाइड दैट. और समटाइम्स दो तीन जगह प्रॉब्लम है. अगर ये डेट का कॉलम आप चेकआउट करोगे, यहाँ पे देखिए इस वाले कॉलम में डेट इस तरह से मेंशन है. तो बेसिकली यहाँ पे स्लैश डालना भूल गए हैं, यहाँ पे जो भी डेटा सेट क्रिएट किया है, या फिर ये डेटा कहाँ से आता है, जनरली यूजर्स की इंफॉर्मेशन से आता है. सो फॉर एग्जांपल किसी मॉल में आप कुछ परचेस करने के लिए जाते हो, तो वो आपको आपका मोबाइल नंबर, नेम और क्या आइटम्स परचेस किए अपने, वो तो ऑलरेडी उनके पास होता है, बिकॉज स्मार्ट बिलिंग सिस्टम होता है. तो जब भी आप जाते हो कहाँ पे भी, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो ड्यूरिंग एट द बिल जंक्शन दे विल आस्क योर नेम, समटाइम्स ईमेल एड्रेस, समटाइम्स मोबाइल नंबर, सारे डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आपकी ले लेते हैं. एंड दे एंटर इन सम सॉफ्टवेयर. तो उससे उनका डेटा सेट क्रिएट हो जाता है, और आपने क्या आइटम्स परचेस किए हैं वो सारे आइटम्स वहाँ पे उनके उस लिस्ट में चले जाते हैं. तो अगर आप नेक्स्ट टाइम जाओगे ना परचेस के लिए, अगर आप सेम नेम एंड ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर बोलोगे, तो आपके नाम पे और जो भी न्यू आइटम्स आपने परचेस किए वो ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, कि आप एक पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल में जाके बार बार क्या चीज़ें परचेस कर रहे हो. अगर आप ग्रोसरी की चीज़ें परचेस कर रहे हो, क्लोथ्स परचेस कर रहे हो, या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम परचेस कर रहे हो, या फिर एनीथिंग एल्स आप परचेस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स परचेस कर रहे हो, तो आपका सारा इंफॉर्मेशन, आपका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करेगा कौन, मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम. वहाँ पे मशीन लर्निंग लगेगा, आपका जो भी एज, जेंडर, जो कुछ भी है उसको टैली करके, एंड फाइनली आपके जो भी आइटम्स आपने परचेस किए हैं उस बेसिस पे आपका एक तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करेगा कि आप क्या बाय कर रहे हो. सेकेंडली आपने जो भी परचेस किया है उसके बेसिस पे आपका एक अर्निंग कितना हो सकता है, पर मंथ आपने कितना कमा रहे हो, वो भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपने क्या आइटम्स परचेस किए, कौन से ब्रांड के परचेस किए हैं. तो उस बेसिस पे आप मंथली आपकी इनकम कितनी होगी वो भी मशीन लर्निंग प्रिडिक्ट करेगा, और ये सारा डेटा बाद में बेचा जाएगा. सो दीज कंपनीज, एक तो वो उनके फायदे के लिए वो डेटा यूज करेंगे, या फिर इलीगली दे विल सेल योर डेटा टू अदर मार्केटिंग एजेंसीज. तो फिर मार्केटिंग एजेंसीज को पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी होगी, अगर उससे इनकम प्रेडिक्ट किया तो फिर क्रेडिट कार्ड वाले आपको फोन करेंगे कि मुझे आपको क्रेडिट कार्ड लेना है क्या नहीं लेना है. सो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट वो सर आपका मोड ऑफ पेमेंट भी वहां पे एंट्री होगा, कि आपने कार्ड पेमेंट किया है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है, कैश किया है,
पेटीएम किया है, जो कुछ भी किया है वो सारा वहाँ पे आ जाएगा। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ पे मशीन लर्निंग काम करेगा, आपका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई होगा, आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाएगी, एस्टिमेट की जाएगी कि आपको इतना मंथली आप अर्निंग कर रहे हो, एंड ऑन दैट बेसिस फिर आपको बहुत सारे, आपको दिन में आप देखोगे बहुत सारे मार्केटिंग, आपको प्रमोशनल मैसेजेस आते रहते हैं कि रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड, रिगार्डिंग कार लोन, ये लोन, वो लोन, पर्सनल लोन. So this is because of you submit your data. Not only here, you also submit your data at Facebook और गूगल के सारे प्लेटफॉर्म्स में आपका डेटा होता है, आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ उनको पता है. तो ये सारा डेटा इस तरह से CSV फाइल में लोड किया जाएगा. इवन आपके जो सेल फोन ऑपरेटर्स है उनके पास भी आपका सारी इंफॉर्मेशन होती है, एंड अकॉर्डिंगली आप मंथली कौन सा रिचार्ज जनरली कर रहे हो. लेट्स से वी आर रिचार्जिंग बाय 199 और कंटिन्यूअसली वी आर रिचार्जिंग, सो आपका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करेगा. उस बेसिस पे आपको प्लान प्रमोट किया जाएगा कि ये करो, ये स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ये लोग फॉलो करते हैं, एंड फॉर दैट दे यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. तो यहाँ पे अगर मशीन लर्निंग की सिर्फ बात करें, हम अगर अमेजोन की बात करें, सो अमेजोन का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 35% रेवेन्यू इस वाले मशीन लर्निंग से मिलता है. मशीन लर्निंग मतलब ये स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी. तो एक बार आपका इंटरेस्ट पता चल गया गूगल को, तो आप गूगल का प्लेटफॉर्म के जो भी एफिलेटेड प्लेटफॉर्म्स है, या फिर जो भी वर्टिकल्स है गूगल के, जैसे यूट्यूब हुआ, या फिर गूगल पे हुआ, जो कुछ भी है यूट्यूब, गूगल के प्रोडक्ट्स, जीमेल हुआ, आप कहीं पे भी जाओ, आपको एक बार आपका इंटरेस्ट पता चल गया गूगल को कि आप वहाँ पे शूज सर्च कर रहे हो, तो आप चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपको शूज़ के ऐड बाजू में दिखेंगे, और जब तक आप शूज़ परचेस नहीं करोगे आपको वो छोड़ेंगे नहीं. तो दिस इज स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी. ये नॉट ओनली गूगल बट अमेजोन और अदर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो यूजिंग. तो आपका डेटा इस तरह से CSV फाइल में चला जाता है. और समटाइम्स क्या होता है कि यूजर ने मोबाइल नंबर नहीं दिया इनपुट, या फिर यूजर ने गलत मोबाइल नंबर इनपुट दिया है, या फिर यूजर ने गलत ईमेल एड्रेस डाला है, या फिर कोई एक फील्ड एम्प्टी है. तो ये वाला केस उसका है कि यहाँ पे फील्ड्स एम्प्टी है, पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है. समटाइम्स यूजर जो एंट्री करता है वो रॉन्ग फॉर्मेट में दे सकता है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम चेक करें कि डेट इनपुट करना था, तो यहाँ पे बाकी यूजर्स ने प्रॉपरली इनपुट किया है 25/12/2020, लेकिन यहाँ पे इस वाले यूजर ने यहाँ पे स्लैश देना भूल गया है. तो या फिर ये ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट होता है, या फिर यूजर इज एंटरिंग लाइक दिस. आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. तो उस तरह से यहाँ पे डेटा इनपुट किया जाएगा. तो ये डेटा जो है ना, ये समथिंग इन द रॉन्ग फॉर्मेट. डेटा रॉन्ग नहीं है, डेटा सही है. 26/12/2020, सो 2020 का 12th मंथ एंड 26 इज द डेट. डेटा तो करेक्ट है, लेकिन उसका फॉर्मेट गलत है कि ये डेट के प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है. दैट्स द प्रॉब्लम. एक एक प्रॉब्लम ये था कि डेटा इज एम्प्टी, वहां पे सेल्स में डेटा अवेलेबल नहीं है. सेकेंड प्रॉब्लम, डेटा इज इन रॉन्ग फॉर्मेट. नाउ थर्ड प्रॉब्लम भी इसके अंदर है. अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना 9 को, तो अगर ये ओवरऑल आप ये जो फर्स्ट कॉलम है जो कि ड्यूरेशन का कॉलम है, द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ ड्यूरेशन कॉलम. तो 60, 60, 45, 60, 45 इस वाले रेंज में ये डेटा है, और सडनली यहाँ पे 450 है. तो यहाँ पे क्या हो ना, गलती से 45, वो ही वॉज ट्राइंग टू राइट 45, बट बाय मिस्टेक ही हैज एडेड एक्स्ट्रा जीरो, तो 450 हो गया. तो ड्यूरेशन का जो रेंज है, अगर आप एंटायर डेटा सेट में चेकआउट करोगे, तो ये अराउंड 40 to 60 के रेंज में वैरी कर रहा है, और सडनली वी आर गेटिंग 450 विच इज क्वाइट ह्यूज. So this is the some sort of typo error और डेटा जो बन चुका है उसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है. So this data is wrong data. Okay, this is not in wrong format, not empty, but this is wrong data. ये जो डेटा है ये wrong है. तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि डेटा wrong हो सकता है. और एक प्रॉब्लम है कि अगर आप ये वाला कॉलम चेक करोगे ना, कॉलम नंबर 13 एंड 14, इफ यू सी दीज टू कॉलम्स, सॉरी रोज, तो ये जो है यहाँ पे पहला कॉलम 60 60 है. थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको दिस थिंग लेट मी नो. या आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, बट यहाँ पे भी डेट वही है. यहाँ पे आप चेक करो 12/12/2020, यहाँ पे भी वही है 12/12/2020. ड्यूरेशन दोनों का 60 है. यहाँ पे जो पल्स है
this one, sorry, this is 11. No, yeah, this one and this one. I am trying to show you this 13 and 14 row. 60 60, 12 12 2020, 12 12 2020, 100 100, 120 120, 250.7 250.7। तो ये है डुप्लीकेट एंट्री। यहाँ पे डेटा डुप्लीकेट है। हम्म, तो एक यूजर ने 2 टाइम्स सेम इंफॉर्मेशन भरी है तो डुप्लीकेट हुआ है। तो डुप्लीकेट होगा तो जो भी मार्केटिंग का एक्सपेंस होगा, मान के चलो उसको हमें मैसेज भेजना है, तो उसको 2 बार जाएगा। 2 बार भेजने की जरूरत है ही नहीं, एक ही बार भेजना है। एंड अगेन जो भी उस एसएमएस का कॉस्ट होगा, इट कैन बी इवन 0.1 पैसा और वॉट एवर, इवन 10 पैसे का एक एसएमएस होगा, या फिर जो भी मेल जाएगा बल्क एसएमएस सर्विस से, लेट से एक एसएमएस का कॉस्ट 6 पैसा है। लेकिन आप कंसिडर करो कि इफ यू हैव करोड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, 1 मिलियन रिकॉर्ड, 2 और 1 बिलियन रिकॉर्ड्स, क्योंकि जो डेटा है वो 10 या 15 लोगों को तो बल्क एसएमएस नहीं करेंगे, या फिर जो बल्क ईमेलेंगे 10 या 15 को तो नहीं करेंगे। दे विल बी डूइंग दिस फॉर few lakhs, 10 lakhs, 1 million, 2 million, something like that। तो वहां पे अगर 1000 भी डुप्लीकेट्स है तो उतना कॉस्ट तो वेस्ट जाएगा। एंड सेकेंडली अगर किसी को 2 टाइम्स सेम मेल आ रहा है या फिर मैसेज आ रहा है, तो समटाइम्स ही मे गेट इरिटेटेड एंड नॉट गोइंग टू परचेस योर आइटम्स। तो वो जो स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट एंट्री है दैट वी शुड रिमूव। तो ये एक चीज़ है। नॉर्मली मतलब अगर मैं मशीन लर्निंग की बात नहीं भी कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग अप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मुझे डेटा है और सिंपली मुझे मेल भेजना है, तो विदाउट एनी मशीन लर्निंग, तो अगर एक बंदे को 2 3 4 बार अगर मेल जा रहा है तो ही विल गेट इरिटेटेड। नाउ सेकेंड थिंग, मशीन लर्निंग के लिए ये सारा डेटा यूज किया जाएगा, और इसमें अगर एक डेटा सेम सेम है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट विल डेफिनेटली क्रिएट प्रॉब्लम्स इन दी डिजायर्ड आउटकम। और जो भी मॉडल क्रिएट किया जाएगा वो मॉडल उतना एक्यूरेट होगा नहीं, क्योंकि जो डेटा जो दिया है वही गलत दिया है। इफ यू आर गिविंग एम्प्टी सेल्स टू ट्रेन द मॉडल, डेफिनेटली इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। रॉन्ग फॉर्मेट में डेटा, वो भी मॉडल क्रिएट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रॉन्ग डेटा, वो भी मॉडल जो मशीन लर्निंग का जो मॉडल क्रिएट होगा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड डुप्लीकेट एंट्रीज जो भी है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। आपका जो मशीन लर्निंग का मॉडल है उसका एक्यूरेसी जो कुछ भी आएगा उसको वो डेफिनेटली हैम्पर करेगा। तो डेटा गलत हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। तो इस सारे डेटा को क्लीन करने की जरूरत है। देर इज नेसेसिटी ऑफ क्लीनिंग द डेटा। इफ यू क्लीन द डेटा, we can guarantee that our machine learning model will be much more accurate than non clean data। तो डेटा क्लीनिंग की जरूरत हमें 4 केसेस में पड़ती है। नंबर वन, एम्प्टी सेल्स, अपना जो डेटा है और वॉट एवर डेटा सेट हमारे पास है उसमें कुछ रिकॉर्ड्स एम्प्टी है, वहां पे डेटा ही अवेलेबल नहीं है। नंबर टू, डेटा रॉन्ग फॉर्मेट में हो सकता है। अगर वहां पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक्सपेक्टेड है और इंटीजर है, या फिर स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड है वहां पे इंटीजर नंबर आ चुका है, तो दैट इज रॉन्ग फॉर्मेट। समटाइम्स डेट, जो डेट फॉर्मेट में होनी चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। सो इट कैन बी इन अ रॉन्ग फॉर्मेट। समटाइम्स डेटा कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, जैसे अपना जो ड्यूरेशन है दैट वाज वेरिंग इन द रेंज ऑफ 40 to 60, but suddenly we came across 450 value, so that is wrong data। And sometimes there can be duplicate entries in our data set। so in such 4 scenarios or conditions, I must clean the data। वो डेटा को क्लीन करना चाहिए। अगर डेटा को क्लीन नहीं किया है तो उस डेटा पे अगर हम मॉडल ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, तो बिकॉज ऑफ रॉन्ग डेटा, डुप्लीकेट एंट्रीज, आवर मॉडल विल नॉट बी ट्रेन प्रॉपरली। डेफिनेटली ट्रेन तो हो जाएगा, अगर वहां पे डेटा है तो ट्रेन तो हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू रॉन्ग इंफॉर्मेशन वो गलत ट्रेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी छोटे बच्चों को, मशीन लर्निंग मतलब आप कंसिडर करें कि बच्चा है उसको आपको पढ़ाना है, तो किसी छोटे बच्चों को आप ABCD के जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश लैंग्वेज को वो पढ़ा रहे हो, दिस इज ए, दिस इज ए, तो आप ए ड्रॉ कर रहे हो और उसको बोल रहे हो कि दिस इज ए। और अगर आपका डेटा ही गलत है, आपने बी ड्रॉ किया और आप बोल रहे हो कि नहीं दिस इज ए, दिस इज हाउ यू आर ट्रेनिंग द चाइल्ड। तो यहाँ पे जो डेटा आपने यूज किया है वो गलत है। और अगर ये गलत डेटा से आप अगर उसको पढ़ाओगे कि दिस, आप बी ड्रॉ कर रहे हो और बोल रहे हो कि ये ए है,
तो इन दैट केस जो चाइल्ड है वो जिसका भी ट्रेनिंग हो रहा है वो गलत ट्रेन होगा। और इन फ्यूचर अगर वो चाइल्ड को बोला कि ठीक है ये अल्फाबेट्स को आप पढ़ो, तो वो बी को ए बोल देगा समटाइम्स। ओके, दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ रॉन्ग डेटा, गलत इंफॉर्मेशन। तो ये जो डेटा है इट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये गलत है तो डेफिनेटली मशीन लर्निंग का जो भी मॉडल आगे चल के ट्रेन होगा वो गलत होगा। फेस रिकॉग्निशन का हम एग्जांपल लेंगे। फेस रिकॉग्निशन में अपने दो लोगों के फेस आइडेंटिफाई करने, एक अमोल है दूसरा गीता है। आप उसको गीता का फेस दे रहे हो और बोल रहे हो कि ये अमोल है, तो इन दैट केस वो जो भी मॉडल ट्रेन होगा, ये ट्रेनिंग का मॉडल है, तो वो गलत ट्रेन होगा। और इन फ्यूचर जब अमोल सामने आएगा तो उसको गीता बोल देगा, गीता आएंगी तो उसको अमोल बोल देगा। सो दिस विल हैपन ड्यू टू द रॉन्ग डेटा, सो दिस शुड बी क्लीन। ये डेटा को क्लीन करना चाहिए। ऑफ कोर्स एक 1000 डेटा के अंदर एक या दो गलत एंट्री से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर आपका डेटा में बहुत ज़्यादा एम्प्टी रिकॉर्ड्स है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग फॉर्मेट है, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट्स एंड रॉन्ग डेटा है, definitely it will make or it will hamper your final accuracy of your model, and that's very important thing. So that's the need of cleaning the data set. So now, as we have understood what is the problem with our data, now we can use this dirty data dot csv file, which is this one. नाउ इसको हम लोड करेंगे और इसका इन्फो चेक करेंगे कि क्या है इसके अंदर। तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे नियर अबाउट 5 कॉलम्स है, ड्यूरेशन, डेट, पल्स, मैक्स पल्स, कैलोरीज। इसके अंदर 32 नॉन नल है, इसके अंदर 31 है, इसके अंदर 32। सो ये और उसके टाइप्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड टोटल 5 कॉलम्स, 32 एंट्रीज है। लेकिन सिर्फ ड्यूरेशन वाला जो है वो 32 के 32, एंड दिस मैक्स पल 32 32 नॉट नल। बाकी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्लियरली वी आर गेटिंग सम प्रॉब्लम इन आवर डेटा सेट, सो वी नीड टू क्लीन दिस डेटा। तो हम एक एक प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about empty cells. तो इस वाले डेटा सेट के अंदर we are having so many empty cells। तो वो सारे empty cells को हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर empty है। और वो जो सारे empty cells हैं उसको हम सिंपली ड्रॉप कर देंगे। ओके, फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, अगर हमें कुछ एम्प्टी मिलता है तो इसका मतलब वो एम्प्टी है, तो उसको सिंपली ड्रॉप कर देना है, उसे हमें कोई लेन देन है नहीं। वो सारे के सारे रिकॉर्ड ड्रॉप कर देंगे। व्हाई? बिकॉज मेरे पास अगर 10,000 का रिकॉर्ड है और उसमें के लेट से 10-15 रिकॉर्ड्स एम्प्टी है, तो मैं उनको ड्रॉप कर दूंगा। वो उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप कर देंगे, सिंपली ड्रॉप कर देंगे जो भी एम्प्टी है। सो दैट्स द नंबर वन थिंग। सो वी हैव लोडेड दिस डेटा एंड लेट्स प्रिंट the entire data set here df। एंड उसको प्रिंट करने के लिए आपको to underscore string फंक्शन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। this will print your entire data set। now we will create a new data frame। new underscore df करेंगे, new data frame, and this time we will drop the empty। तो df drop na मतलब not available या फिर empty cells। तो drop na फंक्शन से जो भी आपके एम्प्टी रिकॉर्ड्स है वो ड्रॉप किए जाएंगे और वो अभी जो नया डेटा फ्रेम बनेगा दैट विल बी न्यू df। सो नाउ वी कैन प्रिंट न्यू न्यू अंडरस्कोर df डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग। दिस इज हाउ विल प्रिंट इट। नाउ यहाँ पे पहले तो हम पूरा डेटा सेट को यहाँ पे प्रिंट करेंगे और जिसके अंदर नॉट अ नंबर दिखेगा। और इस वाले केस में जो भी एम्प्टी अपने पास है उनको पूरी तरह से ड्रॉप किया जाएगा और सारे एम्प्टी रिकॉर्ड्स ड्रॉप करके हमें फाइनली मिलेगा न्यू डेटा फ्रेम और उसको हम प्रिंट करेंगे। तो वंस आई रन दिस वन, नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द वर्जन विच इज जिसके अंदर हमने ड्रॉप किया। तो ये वाले 0 से लेके 31 तक आप कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा कि नॉट अ नंबर या फिर समथिंग लिखा हुआ है। और बीच बीच के रोज जहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए 27 के बाद डायरेक्टली 29 है, 28 को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। एंड सिंपली यहाँ पे 21 के बाद डायरेक्टली 23 है, तो यहाँ पे अगेन 22 को ड्रॉप किया है। 17 के बाद डायरेक्टली 19 है, 18 को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। सो दिस इज हाउ द सम एंट्रीज आर नाउ ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस। सो दिस इज द डेटा सेट क्लीनिंग। तो यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर ली, डेटा सेट को ड्रॉप कर लिया। नाउ यहाँ पे हमने जो ड्रॉप किया है वो ड्रॉप करके हमने एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट किया है।
तो फिर उसको हमने यहाँ पे किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे नया डेटा फ्रेम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो इसी में ड्रॉप करें इसी में रखो ना, नया क्यों वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आपको उस तरह से चाहिए तो इन दैट केस आप इस तरह से नहीं लिख पाओगे, यहाँ पे आपको एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, दैट इज इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इनिशियली बाय डिफॉल्ट इन प्लेस फॉल्स होता है, तो इन प्लेस मतलब इसी डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस होंगे, डीएफ के अंदर ही चेंजेस होंगे। पहले हमने क्या किया, डीएफ के अंदर कुछ चेंजेस नहीं किए थे, डीएफ के अंदर के ड्रॉप करके नया डेटा फ्रेम, न्यू डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर किया था, तो जो भी चेंजेस हमें मिले दैट वाज इन द न्यू डेटा फ्रेम। But if you use df dot drop na and in place equal to true, that means everything will be dropped from or the empty cells will be dropped from the df only and that will be assigned to df only, तो वो df के अंदर ही असाइन किया जाएगा। तो इन दिस केस हमें फिर से सेम ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो भी डेटा होगा वो अभी df को ही प्रिंट कर रहे हैं, न्यू df करके कुछ वेरिएबल्स हमने क्रिएट नहीं किया है। और इस वाले डेटा सेट में यू कैन सी हियर नथिंग इज एम्प्टी, नॉट अ नंबर करके कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो है इसके ऊपर ये जो 31 यहाँ पे देखिए आप, नॉट अ नंबर है, यहाँ पे भी नॉट अ नंबर है, यहाँ पे भी नॉट अ नंबर यू आर गेटिंग, सो वी आर गेटिंग सो मेनी empty records in the first original data frame. So now we have dealt with the empty cells. तो ये एक तरीका हुआ empty cell के साथ प्ले करने का, ठीक है, कि अगर वो empty है तो उसको सिंपली हटा दो, उसकी हमें जरूरत नहीं है, उसको हटा दो। समटाइम्स ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा कि आप सिंपली एम्प्टी सेल्स को ड्रॉप कर दो, मान के चलो अगर 1% 2% सेल्स आपके एम्प्टी है तो यू कैन गो 100 में से एक दो ही ड्रॉप करना है। लेकिन अगर आपके 10-20% एम्प्टी है, यू आर हैविंग 10 to 20% एम्प्टी रिकॉर्ड्स, तो आप क्या 100 में से 20-30 ड्रॉप करोगे? तो अगर इतना ड्रॉप करोगे तो डेटा सेट का साइज कम हो जाएगा, और साइज कम होगा तो अगेन ट्रेन कर, क्योंकि डेटा ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा डेटा उतना ट्रेनिंग अच्छे से होगा। तो उसके लिए हमें इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग, हम जो भी एम्प्टी है उसके अगेंस्ट कुछ वैल्यू फिलअप करेंगे। ड्रॉप क्यों करेंगे, कुछ वैल्यू फिलअप करेंगे। तो अगर वैल्यू फिलअप करना है तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉप एन आप यूज करो फिल एन, फिल करो नॉट एम्प्टी, जो एम्प्टी है या फिर नॉट अवेलेबल डेटा है उसको फिल करो। फिल किससे करना है वो आपके, अभी यहाँ पे ड्रॉप एनए में सिंपली इन प्लेस ट्रू कर दिया तो ड्रॉप कर दिया, उसमें कुछ बाकी का कुछ था नहीं। लेकिन फिल एनए जो है वो ये मांग करेगा कि आप किससे फिल करोगे, क्या डालोगे, अगर एम्प्टी है तो क्या लिखना है वहां पे। तो मैं चाहता हूँ अगर एम्प्टी है तो वहां पे 130 डाल दो, ठीक है। रैंडमली अभी मैं बोल रहा हूँ, बाकी आगे चल के देखेंगे कि रैंडम, अभी मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। 130 यहाँ पे डाल दो, अगर एम्प्टी है पुट 130 देर। तो अगर वो 130 वहां पे प्लेस कर देगा तो इन दैट केस हमें जहां जहां पे भी एम्प्टी था वहां वहां पे हम 130, देखिए यहाँ पे डेट था 130 मिल गया, डेट एम्प्टी था। एंड इवन हियर जहाँ पे भी हमें एम्प्टी रिकॉर्ड्स थे यहाँ पे आपको 130 मिलेगा इन दिस, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे 130 डाल दिया है। सो वेन एवर यू आर हैविंग सम एम्प्टी रिकॉर्ड वहाँ पे 130 फिलअप कर दिया। तो ये ठीक है, एक रैंडमली हमने एक नंबर चूज कर लिया और उसको हमने बोल दिया कि इसको फिलअप कर दो 130। लेकिन ये तो कोई करेक्ट मेथड नहीं है, इसने डेट के अंदर भी डाल दिया, कैलोरीज के अंदर भी 130 डाल दिया, मैक्स पल्स होगा तो उसके अंदर भी डाल दिया, और जो पल्स है उसके अंदर भी डाल दिया। ठीक है, अगर आप कैलोरी है और आप चाहते हो कि 130 विच इज इन द रेंज, ये जो इसका जो रेंज है या फिर इसके बीच में आता है, तो वहां पे ठीक होता है वो 130 नंबर। लेकिन हर जगह 130 अप्लाई नहीं करेगा ना। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर किसी एक कॉलम के अंदर डालना है तो हमने कॉलम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डीएफ और उसका कॉलम। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस वन हम यहाँ पे किसी एक कॉलम के अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि मुझे कैलोरीज के अंदर ही खेलना है तो उसके कॉलम का नाम मुझे डालना होगा कैलोरीज, और इस कैलोरीज के अंदर नॉट नॉन एम्प्टी जो कुछ भी है उसको फिल करो 130 से। तो अभी डेट के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होंगे या फिर डेट कॉलम के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं होगा। तो चलो हम यहाँ पे अभी ट्राई करेंगे एंड विल हिट रन। सो यहाँ पे देखिए डेट के अंदर अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो भी चेंजेस हुए वो 130 यहाँ पे कैलोरीज के अंदर आ चुका है। तो वेर एवर यू सी एम टी यू विल फाइंड देयर इज 130। ओके, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे यू आर गेटिंग 130, तो जहाँ पे एम टी है वहाँ पे वी आर गेटिंग
130. सो नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, तो हम किसी एक कॉलम के अंदर वैसे ही डेट में कर सकते हैं, पल्स में कर सकते हैं, मैक्स पल्स में कर सकते हैं, हर जगह हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे पल्स में करना है तो डीएफ पल्स फिल एनए और जो भी वैल्यू आप चाहते हो। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। 130 मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? अभी यहाँ पे मैंने रैंडमली बोल दिया 130, ठीक है, आप 240 बोल दो, कुछ भी। दैट्स अ रैंडम वैल्यू। इट्स नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू कि हम क्या फिलअप करेंगे। और लॉजिक नहीं बनता है कि आप 130 कहाँ से लेकर आए। तो एक तो जो भी आप वैल्यू वहाँ पे फिल कर रहे हो, अगर वो उस वाले कॉलम की एवरेज वैल्यू होंगी, तो एक लॉजिक बनता है कि ठीक है, आपने पूरे कॉलम का एवरेज वैल्यू निकाली है और उस वैल्यू वहाँ पे फिल अप कर दी। या फिर उस कॉलम की जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू उसके अंदर आ रही है, लेट्स से 10 इज अपीयरिंग इन दैट कॉलम मोर फ्रीक्वेंटली अगेन एंड अगेन, वहाँ पे 10 जो है वो 10 बार है, वो बाकी के नंबर से जो फ्रीक्वेंटली वहाँ पे 10 है, तो 10 अगर डाल दिया क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग वैल्यू है इन दैट और ऑकरिंग वैल्यू है इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, सो ओके। या फिर अगर आपने वो जो भी वो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है उस कॉलम का, और उसमें का जो सेंटर वैल्यू है उसको पकड़ा है आपने, और वो वैल्यू आपने डाल दिया है कि सेंटर वैल्यू मैंने डाली है, तो वो एक लॉजिकली बनता है कि ठीक है, आप लॉजिक फॉलो कर रहे हो और उस लॉजिक के हिसाब से आप वहां पे वैल्यू पुट अप कर रहे हो। तो मुझे चाहिए इस 130 के अगेंस्ट एक वैल्यू कॉल्ड एक्स। पे एक्स वैल्यू एक तो मीन होनी चाहिए, मतलब एवरेज वैल्यू होनी चाहिए, एक तो ये सेंटर वैल्यू हो सकती है, या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू होनी चाहिए। तो अलग अलग लॉजिक है, तो अलग अलग यूज करेंगे। तो अगर मीन कर सकते हैं, मीन मतलब एवरेज वैल्यू, तो पहले देखेंगे कि हम एवरेज वैल्यू किस तरह से ले सकते हैं। सो एवरेज वैल्यू लेने के लिए x इक्वल्स टू कौन से कॉलम का एवरेज लेना है आपको? डीएफ के अंदर का कैलोरीज का जो कॉलम है, इस कॉलम इसका मुझे एवरेज लेना है। एवरेज लेने के लिए मीन फंक्शन है, तो मीन फंक्शन से उसका एवरेज, तो दिस विल मेक एवरेज वैल्यू। तो इसका जो कुछ भी एवरेज निकल के आएगा वो आएगा, और हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेट्स से इसके बाद प्रिंट भी करेंगे, एंड में प्रिंट करेंगे, सो दैट हमें पता चलेगा कि एवरेज क्या निकल के आए। तो ये जो x है, हम कोई भी रैंडम नंबर नहीं लेंगे, हम लेंगे उस कॉलम का एवरेज वैल्यू। नाउ इट बिकम्स मोर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, नाउ वी आर प्रिंटिंग ऑल, और एवरेज निकल के आया 304.68। तो यहाँ पे 304.68 फिल कर दिया इंस्टेड ऑफ 130 और जो भी वहाँ पे एम्प्टी था। तो ये होगा एक एवरेज वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका सेंटर वैल्यू, एवरेज की जगह सेंटर वैल्यू ले, तो सेंटर के लिए मीडियन। तो ये मीन मोड एंड मीडियन आपने मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। मीन मतलब एवरेज। एवरेज मतलब मान के चलो वी आर हैविंग 10 एंड 15, दो नंबर से, तो इनका एवरेज निकलेगा 10 + 15 ÷ 2, मतलब 12.5 निकलेगा उनका एवरेज वैल्यू। तो मान के चलो अगर आपने अम, एक एक दिन में 10 या फिर एक मंथ में आपका सैलरी था 10,000, और सेकेंड मंथ में आपको मिला है 15,000, तो आपका एवरेज सैलरी कितना हुआ? 10,000 + 15,000 ÷ 2, क्योंकि 2 महीने का हम बात कर रहे हैं। तो इन दैट केस आपका 12.5 के इतना आपका एवरेज सैलरी हो चुका है। तो वैसे ही ये मीन का मतलब है एवरेज वैल्यू, और मीडियन का मतलब है सेंटर वैल्यू। दिस इज सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होता है कि आप वो जो इस वाले कॉलम का जो भी डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, और फिर जो सेंटर वैल्यू मिलेगा, तो दैट इज द मीडियन वैल्यू। लेट्स से वी आर हैविंग नंबर 5 4 3 देन 2 देन 1, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो तो इट विल बिकम 1 2 3 4 5। तो इसका सेंटर वैल्यू क्या है? 3, दैट्स इट सेंटर वैल्यू। तो वो आपका हो गया मीडियन। तो फिर से हम इसको भी ट्राई करेंगे कि क्या होगा अगर मैं सेंटर वैल्यू से जाऊंगा। तो सेंटर वैल्यू से अगर मैं जाऊंगा तो 291.2 दैट बिकम द सेंटर वैल्यू, एंड यहाँ पे 291.2 से फिलअप कर लिया। नाउ और एक है मोड। मोड का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू है। तो मोड कैलकुलेट, एक्चुअली मोड विल गिव यू टू वैल्यू, सो यू नीड टू टेक द फर्स्ट वन, सो इंडेक्स 0 ये आपको एडिशनली देना पड़ेगा मोड के लिए, because mode will give, if you simply print this one x instead of this one, you will get two values that range from 0 to that 300. So mode will give most frequently occurring value. So this is the what we can say it, most
फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो वहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे लेट्स से ये यहाँ पे 300 है, एंड अगेन यू आर फाइंडिंग हियर 300, तो 300 मुझे दो बार, तो यहाँ पे और एक बार है 300, तीन बार 300 यहाँ पे मुझे दिख चुका है इस वाले डेटा में। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 300 जो है वो फ्रीक्वेंट वैल्यू है, यहाँ पे बार बार वो रिपीट हो रही है। तो हम अभी देखेंगे मोड से क्या होगा। इफ यू रन फॉर द मोड, नाउ दिस इज 300, दिस इज मोर फ्रीक्वेंट वैल्यू की जो बार बार वहां पे रिपीट कर रही है, दैट्स द फ्रीक्वेंट वैल्यू। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डील विथ एम्प्टी सेल्स। अगर आपके पास कुछ डेटा एम्प्टी है, तो इन दिस वे वी कैन डील विथ दैट एम्प्टी सेल। और चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम एड्रेस करेंगे, दैट इज डेटा इन रॉन्ग फॉर्मेट। एम्प्टी सेल को तो इस तरह से हमने डील कर लिया। नाउ इफ द डेटा इज इन रॉन्ग फॉर्मेट, गलत फॉर्मेट में, वो गलत फॉर्मेट में कहा है कि हमने जो डेट वाला जो अपना कॉलम है उसमें एक एंट्री ऐसी थी कि जहां पे जो डेट है वो रॉन्ग फॉर्मेट में था, इट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। तो उसको अभी हम एड्रेस करेंगे, उसको हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये डेट गलत है वो यहाँ पे प्रिंट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो नॉट अ नंबर है, एम्प्टी है, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये गलत फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा है। सो एट 22 इट्स नॉट अ नंबर एंड 26 इट इज इन द रॉन्ग फॉर्मेट। तो जो एम्प्टी है उसको हम डील करेंगे बाय रिमूविंग द एम्प्टी सेल्स, और जो भी एम्प्टी सेल के हिसाब से हम उसको ये करेंगे, जो फर्स्ट वाला आपने प्रॉब्लम एड्रेस किया। अभी ये सेकंड प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये जो एम्प्टी है ना, सॉरी ये जो रॉन्ग फॉर्मेट में है, तो हम आज इसको नहीं डील करेंगे। अभी इसको ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने डील कर लिया। अब हम इसको डील करेंगे, ये जो रॉन्ग फॉर्मेट में है इसको हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे सो दैट इट विल बिकम क्लीन। तो जैसे कि मुझे पता है ये जो कॉलम है वो डेट का कॉलम है, और इसमें कुछ एंट्रीज हो सकती है कि जो गलत फॉर्मेट में है या फिर सही फॉर्मेट में भी हो। मुझे पता नहीं कि कितनी गलत है कितनी सही है। आई डोंट रियली डोंट नो कि कौन से जो है वो सही है कौन से गलत है। मुझे ब्लाइंडली मैं, मेरे पास क्योंकि 10,000 रिकॉर्ड होंगे, तो क्या मैं एक एक चेक करूंगा कि ये सही है ये गलत है? डेफिनेटली आई विल नॉट बी डूइंग दैट। मुझे वो चेक ही करते नहीं बैठना है, मुझे सिर्फ डायरेक्टली मैं उसको फंक्शन लगा दूंगा कि अगर डेट में है तो डेट में ही रहेगा, डेट में नहीं है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो इट विल कन्वर्ट इट टू प्रॉपर फॉर्मेट। अगर है प्रॉपर फॉर्मेट में तो डोंट वरी, इट विल बी देयर एज इट इज, बट अगर वो नहीं है तो उसको फिक्स कर देंगे। तो लेट्स डू दैट बाय और ट्राई टू फिक्स दिस वन। तो नाउ हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आगे की प्रोसेस करेंगे। सो नाउ हाउ टू डील विद दिस wrong format data? So we have seen that the date at 26th row is completely wrong. Now we'll handle that thing in a proper way. So now in order to handle that one, let's take that column. Now वो column करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, df, और जो column का नाम है वो date column, इस column में हमें modifications करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटा फ्रेम तो बना ली है जिसके अंदर सारा डेटा है, लेकिन उसमें का सारा डेटा भी मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ओनली दिस डेट वाले कॉलम में चेंजेस। सो पी डी टू, देर इज अ फंक्शन कॉल्ड डेट टाइम, तो ये कन्वर्ट करेगा डेट टाइम, और उसमें आर्गुमेंट देना पड़ेगा डी एफ। और कौन से कॉलम को डेट टाइम में करना है, सिर्फ डेट कॉलम को, सारे कॉलम्स को नहीं, बिकॉज अदर कॉलम्स में कुछ अनदर डेटा है। सो आई जस्ट वांट टू हैंडल दिस डेट वाला कॉलम। सो इन दिस पर्टिकुलर कॉलम देयर इज some rows which are not having the accurate date, or it is there but it's in the wrong format। so उसको डील करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो डेट टाइम डेट है, तो उसको मैं डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो, बिकॉज इट्स इन डेट एंड टाइम फॉर्मेट, सो आई कैन डू दैट। एंड आफ्टर डूइंग दिस, वेयर टू असाइन दिस डेटा, तो ये किस में तो असाइन करना पड़ेगा ना। तो df ऑफ डेट इसी कॉलम में आप असाइन करो, किसी और रैंडम वेरिएबल में, या फिर आई कैन असाइन वेरिएबल ऑल्सो, और फिर वो वेरिएबल को इसको असाइन कर सकता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू असाइन दिस थिंग टू अ पर्टिकुलर column, so this how I can do it। and after that I can print this df dot toString।
प्रीवियसली हमने जो देखा उसके अंदर हमने क्लियरली देखा कि जहाँ पे भी रॉन्ग फॉर्मेट में था इट वाज नॉट गेटिंग द एक्यूरेट रिजल्ट्स, वहाँ पे रॉन्ग फॉर्मेट दिख रहा था। अभी यहाँ पे रॉन्ग फॉर्मेट को फिक्स करेगा, और जो रॉन्ग फॉर्मेट था इट वाज ऑन 26th रो। ओके, तो अब हम 26th रो को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे आफ्टर रनिंग दिस कोड। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स 26 दिस थिंग। तो यहाँ पे अब क्लियर कट डिफरेंस है, यू कैन सी हियर कि प्रीवियसली इट वाज इन द रॉन्ग फॉर्मेट, now it is in the correct format. So now it is in correct format. So now 26/12/2020, so now it is in very correct format. So this is how we can fix now। ये जो यहाँ पे आ रहा है कि 22 को not NAT, मतलब ये not time, इसका मतलब है not time। तो क्योंकि ये डेट टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन दिस वाज नॉट टाइम, तो यहाँ पे NAT करके आया। सो क्योंकि ये एम्प्टी था, यहाँ पे एम्प्टी को आप क्या करोगे, उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करके क्या डेट करोगे, अगर वहां पे सेल में कोई डेटा है ही नहीं, तो अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, उसका एम्प्टी सेल्स को कुछ वैल्यू है ही नहीं वहां पे, तो उसका क्या आएगा, तो दैट्स हाउ इट इज गेटिंग नॉट अ टाइम। लेकिन ये जो है ना एम्प्टी वाला पहले फिक्स करेंगे हम पहले उसको फिक्स करवा लेंगे एम्प्टी को, और बाद में फिर इसको ये करेंगे, ये रॉन्ग फॉर्मेट का फिक्स करेंगे। या फिर आप ये करने के बाद ड्रॉप वाला भी चला सकते हो, वंस यू डू दिस वन ना, ये डीएफ करने के बाद ये, इसके बाद भी आप एम्प्टी को टैकल कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे डीएफ डॉट ड्रॉप एन कर सकते हो, ये डायरेक्टली ये फंक्शन चलवा सकते हो। तो ये फंक्शन चलने के बाद वो हटा दिया जाएगा उसको। So whenever okay, yeah, you should mention here in place equal to true, this thing, so that it will make effect in the same thing। So हम इसको clear करवा लेंगे। Oh sorry, it was the wrong okay। Now, if you call drop in and you want to make changes in the same one, then you should use in place equal to true। Now you can see here 26 वाला फिक्स हो चुका है, और इस वाले कॉलम में कोई भी empty अभी नहीं बचा, और किसी में भी कुछ भी empty बचा नहीं है। So nothing is empty inside that। So you can use this empty and this combination, and finally you can fix the data। Now third type of data that we will deal is the wrong data। Okay, so if you consider the seventh row, this is wrong data, 450 is completely wrong, this whatever data we are having is wrong, because it should be in 40 to 60 range, unfortunately I'm getting 450, which is wrong, this value is wrong, this is completely wrong, this 450 is completely wrong। Now I need to fix this one, so in order to fix that one I can use this some functions, or I can just have some indexing here, और इंडेक्सिंग करके इसको फिक्स करवा लेंगे। तो इंडेक्सिंग किस तरह से हम करेंगे, दो ऑप्शन है इंडेक्सिंग करवाने के। पहला हम सिंपल ऑप्शन देखेंगे। पहले तो मुझे फिक्स करना है ड्यूरेशन कॉलम में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो डीएफ है उसका ड्यूरेशन कॉलम ले लेंगे, इस तरह से उसका ड्यूरेशन कॉलम मिल जाएगा मुझे। तो एक बार ड्यूरेशन कॉलम मिल जाएगा, उसका कितने वैल्यू है, ये कितना इंडेक्स है इसका 7, तो उसका 7th इंडेक्स। तो इस तरह से हम करेंगे उसको, ये वैल्यू 450 चाहिए था, सॉरी 45 चाहिए था, उसने 450 डाल दिया है गलती से। तो इस तरह से हम उसको फिक्स करवा लेंगे, किस तरह से, डीएफ ड्यूरेशन, मतलब ये ड्यूरेशन का कॉलम ले लेगा, ओनली ड्यूरेशन कॉलम, एंड इस ड्यूरेशन कॉलम के अंदर भी 7th लोकेशन है जो कि गलत है, तो इस तरह से हम असाइन कर लेंगे, एंड नाउ इट विल फिक्स दैट वैल्यू। सो पहले मैं इसको क्लियर करवा लेता हूँ, एंड देन लेट्स प्रिंट दिस वन, प्रिंट df dot to underscore string। Okay, now this 7 column you see it has been fixed। okay, इस तरह से फिक्स हो चुका है। एक तो इस तरह से आप सिंटैक्स फॉलो करो, या फिर अगर आप चाहते हो कि ये दोनों एक साथ कंबाइन किए जाए, तो इन दैट केस एक ही इसमें भी आप कर सकते हो। तो ये 7 कॉमा ड्यूरेशन, तो 7th इंडेक्स, और कौन से कॉलम में, ड्यूरेशन कॉलम के अंदर। सो इन दिस वे आल्सो यू कैन फिक्स इट, and again you will get exact same result, exact same result। I think we have missed something। okay,
या हाँ, आई थिंक आई हैव मिस समथिंग या यहाँ पे क्या होना है ना, अगर आप इस तरह से दोगे तो यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं हम, रो लोकेट कर रहे हैं ना, तो लोकेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, सो आई एम नॉट, अगर मैं डायरेक्टली डीएफ करूंगा तो डीएफ का कॉलम कंसिडर करेगा उस कॉलम के अंदर, लेकिन हम जो इंडेक्सिंग हमने स्टार्टिंग में देखा जिसके अंदर हम रो लोकेट कर रहे थे, सो रो लोकेट करनी है तो यहाँ पे लोकेशन करना पड़ेगा हमें, सेवेंथ रो लोकेट करनी है किसके अंदर, ड्यूरेशन के अंदर, और उसको 45 करना है। ओके, सो दैट विल बी कन्वर्टेड टू 45। तो ये लोकेशन का जो हमने स्टार्टिंग में देखा, दैट इज दिस फंडा। नाउ यू रन दिस वन, सो नाउ हियर द इट इज फिक्स, नाउ इट हैज बीन फिक्स। तो एक तो आप df डॉट लोकेशन यूज करो, या फिर df ड्यूरेशन और फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी करके यूज करो। अब इस वाले केस में भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये 45 मैंने कहाँ से लाया, फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस 45, तो ये कहाँ से लेकर आया हूँ मैं 45, ये क्या। तो यहाँ पे भी आप वो वाली चीज़ यूज़ कर सकते हो, एक तो यहाँ पे आप जो भी एवरेज वैल्यू है वो निकालो, मीन वैल्यू है वो निकालो, मोड निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, वो चल सकता है। और ठीक है, मैंने निकाल भी लिया, असाइन कहाँ पे करना है। तो क्या, जैसे मैं एम्प्टी वाला केस था जिसके अंदर मुझे पता था कि जहाँ पे फिल एनए है, फिल एनए फंक्शन क्या करेगा, जहाँ पे एम्प्टी है वहां पे फिल करेगा। लेकिन यहाँ पे ना तो फिल एनए है, ना तो एम्प्टी है, ना ही उसमें हमने कुछ ड्रॉप करने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि डेटा तो है, there is data available. Okay, so I am already having the data, so data available तो है, लेकिन वो किस तरह से यहाँ पे और कहाँ पे उसको असाइन करना है वो पता नहीं है। ओके, कैन वी से इट एज ईडीए, ओके दैट्स द क्वेश्चन। या ईडीए हम बोल सकते हैं, इट्स एनालिसिस बट नॉट एट दैट लेवल, हम आगे चल के देखेंगे जब हम थोड़े लाइब्रेरीज यूज करेंगे इन मशीन लर्निंग, तो वहाँ पे हम प्रॉपर ईडीए कर पाएंगे, जिसके अंदर हमें देखेंगे कि कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट प्राइमरी एनालिसिस, इट्स क्लीनिंग पार्ट व्हाट वी आर डूइंग। मोर करेक्ट वे कुड बी, हम इसको जो बोलेंगे इसको हम क्लीनिंग बोलेंगे, लेकिन जो ईडीए आप बोल रहे हो, इट्स हम ये उसके अंदर ये भी एनालाइज करेंगे कि कौन से फीचर कितना वेटेज कैरी कर रहे हैं। अगर मान यहाँ पे हमारे बहुत सारे कॉलम्स अवेलेबल है जिसमें पर्ल्स, मैक्स पर्ल्स, ड्यूरेशन, तो इसमें सर ड्यूरेशन कॉलम कितना वेटेज कैरी कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट दैट आउटकम, तो उसका कितना इम्पैक्ट है। उसका लेट से 80% इम्पैक्ट ड्यूरेशन का है तो हम उसको वो कंसिडर करेंगे, या फिर 20% इम्पैक्ट किसी और का है, तो वो सारी चीज़ें हाँ उसके अंदर कंसिडर की जाएंगी इफ़ वी कंसिडर द ईडीए एनालिसिस। तो ईडीए जब हम बोलेंगे, सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि किस वेरिएबल का कितना इम्पैक्ट उस पे है, दैट्स ऑल थिंग्स। और सारी उसका वेटेज कैरी और सारे मतलब ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके लिए हम आगे चल के ज़्यादा पावरफुल लाइब्रेरीज यूज करेंगे। ओके, सो राइट नाउ इट्स डेटा क्लीनिंग, हम इसको मोर करेक्टली टेक्निकली बोलेंगे डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट, और इसमें अंदर थोड़ा सा हम कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे जिसको आप बोल सकते हैं थोड़ा सा ईडीए है, तो वो हम देखेंगे आगे चल के देखेंगे इन मशीन लर्निंग, नॉट नाउ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक अगर रो को स्कैन करते बैठूंगा और उसमें ये करूँगा तो वो दैट विल बी अ मैनुअल प्रोसेस, तो वो सब कुछ तो मुझे डेफिनेटली करना है नहीं। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक फॉर लूप, हम पूरा फॉर लूप इसके ऊपर चलवा सकते हैं, और ये जो है ना ये हम नहीं करेंगे। हम पहले तो एक फॉर लूप यहाँ पे चलवाएंगे और उस फॉर लूप को हम बोलेंगे कि आप खुद फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे फॉर एक्स इन, हमें इंडेक्स चाहिए ना, तो df डॉट इंडेक्स। ओके, इंडेक्स में जाएंगे, इफ df डॉट लोकेशन। ओके, अभी ये हम वो वाला सिंटैक्स यूज करें, x जो कि 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, किसके अंदर, ड्यूरेशन कॉलम के अंदर, ड्यूरेशन कॉलम के अंदर किसी भी इंडेक्स की वैल्यू अगर ये 60 से ग्रेटर है, इफ इट इज ग्रेटर देन 60, देन कन्वर्ट इट टू, हम उसको सेट करेंगे df dot location, then this x, then this duration, and then equals to, let's say हम उसको कर देंगे 50।
तो उसको 50 कर दो। अगर वो 60 से ग्रेटर है तो उसको ये कर दो, एंड देन फाइनली आप उसको प्रिंट भी कर लो। दिस इज़ ऑल अबाउट। तो यहाँ पे हम ऑटोमैटिकली ये होगा, तो ये सारा डेटा सेट ऑटो स्कैन कर लेगा, और जहाँ पे भी वो डेटा 60 से ग्रेटर है, क्योंकि मुझे पता है कि ड्यूरेशन 60 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता, तो इन दैट केस मेक इट 50। ओके, मेक इट 50, और एनी अदर वैल्यू जो भी आप यहाँ पे आप मीन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ड्यूरेशन कॉलम का मीन निकालो और मीन वैल्यू वहाँ पे असाइन कर दो जहाँ पे ये 60 से ग्रेटर है। तो लेट्स रन दिस वन एंड we'll find that at 7th row now we are getting 50। दिस इज हाउ वी आर गेटिंग 50। तो ये एक हो गया, ठीक है। उसको आप इस तरह से रिप्लेस करो। दिस इज वैल्यू रिप्लेसमेंट, बिकॉज इट्स रॉन्ग डेटा, विल रिप्लेस दिस वैल्यू। ओके, चलो ये हो गया करेक्ट थिंग। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये रिप्लेस करना ये सब मुझे नहीं चाहिए, सिंपली ड्रॉप कर दो। तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस उसको असाइन करते बैठो, सिंपली कर दो df डॉट ड्रॉप। ओके, ड्रॉप na नहीं, ड्रॉप na क्या करेगा, empty को ड्रॉप करेगा। और ड्रॉप फंक्शन आप जो इंडेक्स बोलोगे उसको ड्रॉप कर देगा, किसके अंदर, ड्यूरेशन के अंदर। इन द ड्यूरेशन कॉलम यू वांट दिस x इंडेक्स टू बी ड्रॉप्ड। कब x कब होगा, जब वो 60 से ग्रेटर होगी उस इंडेक्स की वैल्यू, तो उसको ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पे 7th इंडेक्स जो कि 450 थी, इट शुड ड्रॉप दैट वैल्यू। सो विल सी दैट वेदर इट इज ड्रॉपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लियर दिस वन एंड लेट्स रन। Okay, something is happened, something different has happened. Okay, not duration। यहाँ पे सिंपली उस इंडेक्स को ड्रॉप करना चाहिए, बिकॉज आई एम यहाँ पे बोल रहा है ये कि दिस आर्ग्यूमेंट्स ड्रॉप फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम है। सो इट शुड हैव ओनली वन आर्ग्यूमेंट। द की एरर ड्यूरेशन बोल रहा है कि ड्यूरेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे सिंपली इंडेक्स चाहिए, एंड उसको आप इन प्लेस कर दो, क्योंकि उसको उसी के अंदर हो जाएगा। नो नीड टू असाइन अ न्यू डेटा फ्रेम। So now it should drop in this particular case. So let's run this and we'll check whether it is dropping. Now 5 के बाद 6 है, 6 के बाद सीधा 8 है, वो जो भी था उसको ड्रॉप कर लिया। लेकिन यहाँ पे बाकी जगह यहाँ पे 60 से ऊपर है, यहाँ सब जगह 60 से ऊपर है, इनको ड्रॉप नहीं किया, सिर्फ ड्यूरेशन वाले को ड्रॉप कर लिया। ड्यूरेशन कॉलम वो था तो वो रो ड्रॉप कर लिया। सो दिस इज हाउ वी कैन डील विद द रॉन्ग डेटा। दिस इज रॉन्ग डेटा, इट्स नॉट रॉन्ग फॉर्मेट, इट्स रॉन्ग। ओके, नाउ ये तो हो गया, हमने अभी टैकल किया एम्प्टी को। फिर हमने टैकल किया जिसमें रॉन्ग फॉर्मेट में डेटा है। फिर हमने टैकल किया जिसमें डेटा ही रॉन्ग है, डेटा है लेकिन रॉन्ग है। अब हम टैकल करेंगे जहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स है। तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स कहाँ पे है, तो हम इसको df टू स्ट्रिंग, पहले हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स देखेंगे। सो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 11 एंड 12, आई थिंक या दिस वन, दिस 11 एंड 12, ये जो है ना, ये दोनों ये डुप्लीकेट है, डेटा ही रिपीटेड है, डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे ठीक है, ये डुप्लीकेट मुझे पता चल गया है, तो मैं इसमें का 12 वाला जो रो है उसको ड्रॉप कर दूंगा यूजिंग df डॉट ड्रॉप फंक्शन, df डॉट ड्रॉप कॉमा 12। तो पहले मैं मैन्युअल प्रोसेस बता देता हूँ किस तरह से हम करेंगे। df डॉट ड्रॉप, फिर हम यहाँ पे देंगे 12, और हम इसको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर लेंगे। ओके, तो हम इसको अभी क्लियर करते हैं एंड देखेंगे कि क्या वो 12 वाला ड्रॉप कर लिया। सुनो, 11 के बाद अभी सीधा 13। ओके, दैट इज ड्रॉप्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, जो डुप्लीकेट डेटा है, डुप्लीकेट डेटा है तो सिंपली उसको रिमूव करना है, ना तो उसके अगेंस्ट कुछ भरना है, ना ही उसके अंदर कुछ मीन एवरेज कुछ भी निकाल के उसके कुछ करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। अगर वो डुप्लीकेट है तो उसको ड्रॉप कर दो, सिंपल सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अगर एम्प्टी है तो हमने देखा कि मीन वैल्यू करके फिलअप कर दिया। रॉन्ग फॉर्मेट में है तो उसका फॉर्मेट सही किया। रॉन्ग डेटा है तो उसके जगह हम मीन वैल्यू या फिर कुछ तो वैल्यू फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा डुप्लीकेट है तो उसको ड्रॉप कर दो, उसको नहीं चाहिए, दैट डेटा इज नो लॉन्गर नीडेड। ओके, उसके लिए अभी हमने एक मेथड देखा, मुझे पता चला कि 12 नंबर का जो रो है दैट इज रिपीटिंग, इट इज डुप्लीकेट डेटा, तो हमने उसको ड्रॉप कर लिया बाय यूजिंग दिस वन।
लेकिन क्या मैं सारा डेटा एक के बाद एक चेक करूँगा कि कहाँ पे डुप्लीकेट है, कहाँ पे डुप्लीकेट है, ये सब करते बैठूँगा तो अगर 10,000 एंट्रीज़ है तो हो सकता है कि पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन मुझे डुप्लीकेट्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए भी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट करोगे आप df डॉट डुप्लिकेटेड, तो आपको पता चलेगा कि क्या इसके अंदर डुप्लीकेट है या नहीं। अगर डुप्लीकेट है तो ही आप उसको ड्रॉप करने का सोचोगे, तो मतलब पता चलेगा कि कितना है डुप्लीकेट इसके अंदर। रन करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रू मिला है, इसका मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट है, बाकी जगह फॉल्स फॉल्स मिला है। तो अब इसमें इसको अगर किसी वेरिएबल के अंदर आपने असाइन किया और उसके अंदर आपने ट्रू वैल्यूज को काउंट कर लिया, तो आपको नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स यहाँ पे पता चलेंगे। तो वी गॉट 12 नंबर को डुप्लीकेट है यहाँ पे, तो मुझे क्लियरली पता चल गया। तो इसमें डुप्लीकेट है या नहीं, इससे ये डुप्लीकेटेड से मुझे पता चलेगा। सो दैट इज वन थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक बार मुझे अगर पता चल गया है कि यहाँ पे डुप्लीकेट है, तो मुझे इसको ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने के लिए मुझे उसका इंडेक्स वगैरह फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ होगा वो अगर आप करते बैठो मैन्युअली, जहाँ पे ट्रू है वहाँ उसका इंडेक्स आइडेंटिफाई करो। तो ये सब करने से अच्छा है कि इट प्रोवाइड्स यू अ बेटर फंक्शन कॉल्ड df डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेटेड डुप्लीकेट्स, और फिर आप यहाँ पे इन प्लेस ट्रू करो क्योंकि आप सेम इसमें करने वाले हो, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तो हो जाएगा आपका ड्रॉप, जो भी है वो पूरा का पूरा ड्रॉप कर लेगा। एंड देन आप सिंपली उसको प्रिंट कर लो, प्रिंट df डॉट टू स्ट्रिंग, so now it will drop all the duplicates and you will get very clean data. So now after 11 there is 13 directly, वो drop मार दिया उसको immediately, there is drop 12th number का जो भी था, it is now dropped because it's in place equal to true. Okay, so this is how the wrong data, incomplete data, ये सारों को हम fix कर लेंगे। Now जो हम डेटा का एनालिसिस करेंगे कि हम ये जो कॉलम्स है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स, वो एक दूसरे के साथ कितने मैच करते हैं। मतलब अभी अपने डेटा सेट के अंदर हमने देखा कि वी आर हैविंग 5 कॉलम्स, तो उसमें एक ड्यूरेशन का कॉलम है, तो ड्यूरेशन का कॉलम और पल्स के कॉलम के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है, और ड्यूरेशन के कॉलम के साथ जो लास्ट वाला कॉलम है, जैसे कि लेट्स से कैलोरीज का कॉलम है, वो ड्यूरेशन के साथ कितना मैच करता है, कितना मेल खाता है, या फिर कितना उसका मैचिंग है, उसका कोरिलेशन कितना है। कोरिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ का रिलेशन कितना है, कोरिलेट कितना कर रहा है, एक दूसरे के साथ कितना मैच कर रहा है, दैट इज नथिंग। मैचिंग करना मतलब अगर ड्यूरेशन इंक्रीज किया तो क्या कैलोरीज इंक्रीज हो रही है, ड्यूरेशन डिक्रीज हुआ तो क्या कैलोरीज भी डिक्रीज हो रही है, ड्यूरेशन कांस्टेंट रहा तो क्या कैलोरीज कांस्टेंट रह रही है। तो इन दोनों के बीच में कितनी डिपेंडेंसी है या फिर सिमिलैरिटी है या फिर मैचिंग है, वो हमें पता चलेगा कोरिलेशन से। और अगर हम डेटा सेट के अंदर ये कोरिलेशन फंक्शन चलाएंगे तो हमें डेटा सेट के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाथ में लगेंगी। तो हम इसके लिए कोरिलेशन के लिए एक सिंपल सा फंक्शन है df डॉट कॉर, df डॉट कॉर, और ये फंक्शन हमें बोलेगा कि दो अलग अलग कॉलम्स के बीच में कितना सिमिलैरिटी है, वो एक दूसरे के साथ कितना मैच करते हैं। तो हम इसको रन करेंगे तो हमें एक टेबल मिलेगा। नाउ यहाँ पे हमें एक टेबल मिला है। ओके, सो इट्स कैन बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन और इट कैन बी अ नेगेटिव कोरिलेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ड्यूरेशन पल्स मैक्स पल्स, और यहाँ पे भी ड्यूरेशन पल्स मैक्स पल्स कैलोरीज इस तरह से है। ड्यूरेशन के साथ ड्यूरेशन का मैचिंग है 1.0 मतलब 100%, क्योंकि ऑब्वियस है ड्यूरेशन और ड्यूरेशन के साथ अगर आप कोरिलेशन करोगे तो 100% ही होगा, उसमें कोई दोहराई है नहीं। लेकिन अगर ड्यूरेशन का कॉलम पल्स के साथ कंपेयर करोगे तो 0.004, तो मतलब ये 4% भी शायद नहीं है, इट्स अराउंड 0.4% इनका मैचिंग है। तो ये कैलोरीज के साथ तो -11% मैचिंग है। लेकिन अगर आप ये देखोगे ना, पल्स और ये कैलोरीज 51% मैचिंग हो रहा है यहाँ पे, पल्स और जो पल्स का जो सीधा इम्पैक्ट है कैलोरीज पे। अगर कैलोरीज मेरा आउटपुट है, अगर मुझे कैलोरीज प्रेडिक्ट करनी है,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पल्स एंड मैक्स पल्स ये दोनों जो है ना, ये 35% है और ये 51% है। तो ये जो पल्स एंड मैक्स पल्स, ये दो जो कॉलम्स है, वो कैलोरीज को ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, कैलोरीज को ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं देन दिस ड्यूरेशन। तो ये जो ड्यूरेशन वाला है ना, वो उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है कैलोरीज के ऊपर। लेकिन ये पल्स एंड मैक्स पल्स, क्योंकि मैचिंग जो कोरिलेशन है वो अराउंड निकल के आया है 51% और यहाँ पे 35%, तो ये ज़्यादा वहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तरह से कि मैच कर रहा है। तो ये टेबल से हमें ये पता चलेगा कि इसमें से कौन से कॉलम्स इंपॉर्टेंट है फॉर मशीन लर्निंग और कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ से पिक कर पाएंगे कि पल्स एंड मैक्स पल्स इज more affecting the calories, or calories is more dependent on pulse and max pulse column, but lesser dependent on the duration। लेकिन कैलोरीज के साथ कैलोरीज का करोगे तो 100% ही आएगा, अगर सेम चीज का सेम चीज के साथ कंपेयर करोगे तो 100% मैच ही करेगा, उसमें कोई ये है नहीं। लेकिन यहाँ से हमें सीधा पता चलेगा कि कौन सा कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम फीचर्स बोलेंगे, ड्यूरेशन पल्स कैलोरी, सॉरी ड्यूरेशन पल्स मैक्स पल्स, ये हमारे फीचर्स है और इनके बेसिस पे हम कैलोरीज प्रिडिक्ट करने वाले हैं ये आगे चल के मशीन लर्निंग में। तो ये इसमें से ये जो फीचर वेक्टर है, इसमें से हमारा ड्यूरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन पल्स मैक्स पल्स ये जो है दैट आर मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो प्राइमरी एनालिसिस यहाँ पे हो रही है, लेकिन आगे चल के हम जैसे कि some functions and some libraries, scikit-learn library we are going to use, so there we can use some, again some better and strong functions which can do this analysis more accurately and more precisely and better visualization। वहाँ पे आप अगर empty data है तो उसका pictorial map आपको print करके मिलेगा कि यहाँ पे empty दिख रहा है। तो वो सारा हम आगे चल के, या फिर जो भी रिपीटेड इंफॉर्मेशन है, दैट वी कैन सी इन लेटर सेक्शंस इन मशीन लर्निंग मॉड्यूल, तो जहाँ पे हम वो भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने आज सीखा है कि हाउ वी कैन एनालाइज सीएसवी फाइल्स, उनको लोड कैसे कर सकते हैं, उनका डेटा और क्लीनिंग। बेसिकली अगर इसको टेक्निकली हमें डिफाइन करना होगा तो प्री प्रोसेसिंग का स्टफ हमने यहाँ पे किया है। प्री प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट क्लीनिंग आवर डेटा सेट। सो मोस्टली हमने इन्फो और कोरिलेशन, ये दो फंक्शन एनालिसिस के लिए यूजफुल है, लेकिन रेस्ट ऑफ द फंक्शंस हमने जो भी अप्लाई किए वो मोस्टली जैसे ड्रॉप एन ए था, ड्रॉप फंक्शन था, फिल एन ए, ऑल दोस थिंग्स, या फिर उसको रॉन्ग फॉर्मेट को फिक्स करना, ऑल दो स्टफ वाज रिलेटेड टू द डेटा सेट प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग और डेटा सेट, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आना और उसको फिर मशीन लर्निंग को देना। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लीनिंग। सो एनालाइज करना, थोड़ा इतना ज़्यादा एनालाइज हमने किया नहीं, लेकिन स्टिल वी हैव एनालाइज लाइक डीएफ का हेड, टेल, इन्फो एंड कोरिलेशन, ये सारे फंक्शंस। आगे चल के हम और भी ज़्यादा फंक्शंस देखेंगे फॉर एनालाइजिंग आवर डेटा। Okay, so I hope it's everything is clear now, and we conclude with today's session. But we'll wait for a few minutes in the chat section for your queries and doubts, and after that we'll conclude with today's session. So if you have any queries and doubt, you can ask in the chat section.